हेलो। हेलो सर ठीक हो? हाँ, क्यों, क्या हो गया? सर परवाह करता सर है ऐसा यार। सर ऐसा लग रहा है सर आप थके हुए हो, दौड़ के आ रहे हो। हाँ, कई काम चल रहे हैं ना, कई काम चल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो क्या है कि ये जो मैंने अब देखो टीम्स पे जो रखा है ना, करेक्ट वो रखा है आपका कोड CS2201 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये सारे कोर्स आउटकम चेंज किया मैंने, क्योंकि यही क्वेश्चंस हम पूछेंगे। ठीक है, ये जो कोर्स आउटकम्स है वही क्वेश्चंस हम एग्जाम में पूछेंगे। और ये सिलेबस भी वैसे लैंग्वेज में चेंज है, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से चेंज है, बाकी वही सिलेबस है। लेकिन अब हम अपने नोट्स के बिल्कुल सीक्वेंस में जा सकते हैं, मतलब जो मैंने नोट्स रखा है ना इंट्रोडक्शन का, उसके सीक्वेंस में जाके पढ़ सकते हैं और फिर बुक से कर सकते हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब, सिंगल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम कमांड, सिस्टम कॉल, इंटरप्ट, सिस्टम बूट, ये लूंगा मैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर और मल्टी प्रोग्रामिंग इधर लूंगा उस नोट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी ये सब थोड़ा बुक से आप रेफर करोगे, नोट्स की बजाय बुक से रेफर करोगे इस चीज को। और क्वेश्चंस ये जो सेशन आउटकम है इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। तो सारे सेशन आउटकम भी मैंने नए बना दिए। ठीक है, और ये CO2 PO मैपिंग, ये तो खैर आपके लिए इतना जरूरी नहीं है देखना। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि सपोज किसी यूजर को एक स्मॉल टास्क करना है, लाइक सम इक्वल्स टू A प्लस बी। सम इक्वल्स टू A प्लस बी करने के लिए भी, इफ देर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर, he has to means he has to manage the input device. Managing input device means from where it will get the value of A and B. First of all, he has to manage the input device, because your program is a set of instructions. Okay, and process is set of instructions which are there in main memory for execution. Process is set of instructions that are there in main memory for execution, and program is a set of instructions on some device. So first of all, you have to load your program in main memory. For that, you have to manage the input device or the data required by the program. You have to load in main memory. So whatever input device you are using for loading the program, you can use that input device with a program. Means device controller is there, electronic circuitry mounted on PCB, but device driver means the routine that is used to use this device. This routine, this software gives commands to this circuitry, and this circuitry in turn uses this device. Okay, so you have to write your own device driver corresponding to a particular input device if there is no operating system. Okay, for doing smaller programs also you have to do these things. Okay, if there is no operating system, whatever output device you are using, because your program will give some output, and suppose you are taking that output on a printer, so again you have to manage that output device. You have to use its routine also. You have to write its routine also, its driver also, because it is not there in main memory already. OS is not there in main memory, and every user. And third, you have to manage the main memory also. You have to manage the main memory also to execute your program. Means you should know from which location your program starts. Okay, you have to manage the CPU also, because in CPU you will specify the values of registers. Otherwise, all these things will be done by the operating system. Okay, so operating system is a collection of routines
that helps a user to execute his programs conveniently. Okay, operating system is a set of routines. Device drivers means IO routines, memory management routines, device management routines. Okay, device management, memory management, and process management routines. Process management routines. CPU executes the processes, so process management routines. Okay, mainly process management, memory management, and device management. These routines are there, and if suppose your device is hard disk, so on hard disk device actually we can store, if there is no file system on the hard disk, means Windows file system or Linux file system is not there, we can't store the data in terms of files. Okay, it can store the data, that is raw data. Raw data. Okay, if you want to store in terms of files, then file system should be there on the disk. So this file system routines, they are also part of operating system. So these routines, process management, memory management, device management, file system management, collection of these routines is called as, this software is called as operating system, that helps a user to execute its programs conveniently. And this is the very first objective of operating system, that is user convenience. Otherwise also user can execute his programs, but with lot of things he has to do just to do a smaller task. Just to do a smaller task, he has to manage a lot of things if OS is not there. Okay. Now we had also discussed another, means this is suffice, means this user convenience is the primary purpose of operating system. User convenience is the primary purpose of operating system. But as the time changes, means now the systems, they are multi-user systems, multi-programming systems. Okay, we will discuss the concept of multi-programming today itself. Today itself, we will discuss the concept of multi-programming. Now in multi-programming, actually, some other requirements are also there. If it is a single program operating system, user convenience is the only requirement. But if multiple programs are there in main memory, so various devices, because these devices are shared in nature, these devices, they are shared resources. So these shared resources should be used properly. Properly means two processes should not use the shared resource simultaneously. A printer can't be used by two processes simultaneously. It has to be used in a mutually exclusive manner. Printer has to be used in a mutually exclusive manner. So all the shared resources in the system, they have to be used by these processes in a mutually exclusive manner. Okay, so that thing also have to be, this proper use of resources now has to be guaranteed by the operating system. This proper use of resource means, in case I have given the example of shared resources, that the mutually exclusive manner, the processes have to use them. So this proper use of resources. Okay. Second, in case of multi-programming environment, actually we will see, just means in this lecture or in the next lecture, that the main reason for multi-programming, why we are keeping many processes in main memory, you will see that the main reason is to increase the device utilization, CPU utilization as well as IO utilization. CPU utilization as well as IO utilization. So efficient use of resources is also now a responsibility of operating system. In case of multi-programming environment, proper and efficient use of resources, because the main reason to go for multi-programming is efficient device utilization, that you will see in few means
either in today's lecture or in the next lecture, that we go for multi-programming only for increasing. The main objective of multi-programming is to increase the device utilization. So this is again the responsibility of operating system. And if it is a multi-user operating system, multi-user means these processes, they are corresponding to different users. These processes are corresponding to different users. Then again, the security is also required. Security in multi-programming also means if it is multi-user, then also security is required, that the one process code should not be accessed by another process. This is the responsibility of operating system in case of multi-programming also, but in multi-user, this requirement is somewhat more. Okay, in multi-user, security between different users is required in case of, I mean, in terms of process, not only for processes, actually for files also. Files which are there on hard disk. This device, hard disk, files are there corresponding to different users if it is a multi-user system. So security of files is also required. In this case also security is required in case of simple multi-programming. But in multi-user, this requirement is required for files also. So this is a second objective of operating system, that the secure, efficient and proper use of resources. So these 2 points I have written in that file. In this file, I have written the definition of operating system, and from the definition only I have extracted the objectives: user convenience and to provide secure environment between different users. Okay, this I have explained to you, and to manage resources properly and efficiently in multi-user environment, multi-user, multi-programming environment. Okay. So this is about now in this file you see here structure of an OS. So we will take structure of an OS and this topic concept of multi-programming in brief. Actually this is in मतलब जो कोर्स हैंड आउट है आपका, एक सेकेंड, in the course handout, actually this types of OS and OS structure is after introduction. Okay, so we are taking this OS structure in brief here. In notes, we are taking in brief. Again, we will discuss this topic in detail from the book, from the test book. Similarly, for multi-programming, we are taking in brief here. Again, we will discuss it in detail from the not multi-programming, means other type of network OS, distributed OS, again from the test book. Okay, so definition I have completed. Single and multi-processor systems, you can yourself go through the book. Okay, and now I am taking the OS structure in brief and multi-programming concept in brief, and then I will take these things in detail from the notes itself. From the notes itself, I will take OS services, system command, system call, interrupt, and system boot process in detail. And you can also go through your test book if you want. Okay. Otherwise, notes are sufficient for this one. For this one, you have to necessarily go through the book. Okay. So here I am taking now in brief 2 things which are not mentioned here. They are mentioned here. And again, I will take those things from the test book, and then I will take these things. Is it okay? So structure of OS I am taking now. So structure of OS means how this OS is built. Okay, means we can actually, we will discuss, just now I told you that we will discuss this in detail again. Means various structures are possible, layered structure, okay, monolithic,
माइक्रो कर्नल, जो कि नेक्स्ट यूनिट मतलब नेक्स्ट लेक्चर पोर्शंस का पार्ट है। लेकिन जस्ट अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि व्हाट ओएस कंसिस्ट ऑफ, अमन व्हाट ओएस, विच मॉड्यूल ओएस कंसिस्ट ऑफ, ये दिस इज हार्डवेयर, विच मॉड्यूल्स ओएस कंसिस्ट ऑफ, अमन 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 कोई सुन रहा है वही बोले, व्हाट मॉड्यूल्स ओएस कंसिस्ट ऑफ। अरे दिस इज अ बिग सॉफ्टवेयर, दिस OS is a software ना, what it has to manage, अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना। CPU सर, CPU CPU means processes it has to manage, processes, the OS has to manage the processes. This is hardware and it has to manage the processes. Any other thing that it has to manage? file system Files, सर सीक्वेंसिंग, files, processes में ही आ गया sequencing of processes, device, मेमोरी, एक्सीलेंट। सो ये जो है, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, तो मोनोलिथिक में क्या है, दिस होल कंस्टिट्यूट ऑफ द कर्नल प्रोसेस। आप प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए रूटीन्स लिखेंगे, फाइल मैनेजमेंट के लिए रूटीन्स लिखेंगे, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए रूटीन्स लिखेंगे, अपने फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए रूटीन्स लिखेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट के रूटीन्स लिखेंगे, और यही रूटीन्स आप डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ोगे। जैसे जब लास्ट में फाइल सिस्टम मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, और इवन लास्ट में नहीं पहले ही देख लेंगे लैब के कारण, कि फाइल सिस्टम हार्ड डिस्क पे क्या क्या टेबल्स होता है और मेमोरी में क्या क्या टेबल्स होता है, क्या क्या रूटीन्स होते हैं। टेबल्स तो रिक्वायर्ड होती है रूटीन्स के लिए, ठीक है। तो क्या क्या डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या रूटीन्स होते हैं फाइल सिस्टम के, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर ही होगा इंट्रोडक्शन के बाद। मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में मेमोरी के रूटीन्स देखेंगे, ठीक है, कंटिग्यूअस अलोकेशन, पेजिंग, सेगमेंटेशन, ओके। सो ये सारे रूटीन्स अगर एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल मीन्स कि आपने मॉड्यूल्स में तो डेवलप कर लिया, आप बिग सॉफ्टवेयर को ऑब्वियसली मॉड्यूल्स में तो डेवलप करोगे ही, और मॉड्यूल्स जो है वो कैसे डिवाइड करोगे, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी ऑफ ईच मॉड्यूल। तो एक आपका हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल, एक हो गया फाइल सिस्टम मैनेजमेंट मॉड्यूल, एक हो गया डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल, एक हो गया मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल, ठीक है। तो इफ दीज मॉड्यूल्स यू हैव बिल्ट, okay, you have coded, and each module can call the functions because they are not independent modules. ये independent modules तो नहीं होंगे ना OS के। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट मॉड्यूल डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल को कॉल करेगा, डिवाइस, क्योंकि आपकी फाइल्स स्टोर्ड है, तो आपका ड्राइवर यूज होगा ना उन फाइल्स को मेमोरी में कॉपी करने के लिए, तो डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल के फंक्शंस कॉल करेगा। डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है आपका मेमोरी में लोड हुआ प्रोग्राम, तो मेमोरी फंक्शंस कॉल करेगा, फिर मेमोरी में वो प्रोसेस बनेगा, ये प्रोसेस को कॉल करेगा। दीज मॉड्यूल्स दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ये तो है ही, ठीक है ना। दीज मॉड्यूल्स दे विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो अगर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि दीज ऑल मॉड्यूल्स वी से इट इज कर्नल, मतलब जो इसको खैर कर्नल तो हर स्ट्रक्चर में ही कहेंगे, लेकिन मोनोलिथिक कर्नल में क्या होगा, ईच मॉड्यूल दे ऑल आर एट द सेम लेवल, these modules they are at the same level, means each module can call the other module, the functions of other module, ठीक है। और लेयर्ड स्ट्रक्चर एक होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या है कि जनरली लेयर्ड स्ट्रक्चर कर्नल इज डिजाइन इन दिस वे कि दिस इज प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल जस्ट अबव हार्डवेयर, above it, because generally this is the picture,
just now I told na, file system calls the functions of this module. Okay, and then it will call the functions of this module and then this module. So, but I am writing again process management here, upper, lower. Means you can build the kernel in this manner also. This is your device management module, and above it file system management module. Okay, so in layered structure, what are the means, if this is a monolithic kernel, this is also a monolithic kernel, but it is designed as a layered structure. This whole is kernel. Okay, this whole is kernel, and above it all the programs, they are application programs. Above it all the things, they are application programs or system programs. Means as far as OS this subject is concerned, there is no difference between application program or system program. As far as this subject is concerned, we are concerned only with kernel process and user process. So all the processes which are running here, they are kernel process. All the processes which are running above kernel, they are user processes. It may be application process, it may be a system process. Okay. So means your compiler, debugger, assembler, Word, browser, or any other Excel, any other software, they all are user processes because they run in user space. They are above kernel. Kernel has these routines. Okay, kernel code is a collection of these routines. They may be at the same level in case of monolithic kernel, simple structure, simple monolithic structure, or it may be in this way. In modules you have written, and now in layered structure, what is the point? In layered structure, actually the upper layers depends for their functionality on lower layers. Means upper layers can call the functions of lower layers. Lower layers can't call the functions of higher layers. In every layered structure, you have, I think you know the layered structure of network. In network, in TCP IP model, the lowest layer is your Ethernet, physical layer. Okay, then data link layer in Ethernet, data link, and then your Network. IP layer, and then TCP, and then your application. Okay, so in this layered structure, means in any layered structure, 2 points are there. First point is the upper modules, they depend on lower modules. Okay, they depend on the lower modules, means upper modules, they can call the functions of lower modules, and lower modules can't call the function of upper modules. And second, as we go to the upper module, upper layer, we hide the details of lower layers and provide a higher level abstraction at the upper layer. In this TCP IP model also, that is used for network communication. In TCP IP model also, actually अभी चलो वो बाद में आ जाएगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे जब नेटवर्क ओएस पढ़ेंगे, क्योंकि उस दिन डाउट हो रहा था ना मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी यूजर और नेटवर्क, तो वो भी डिस्कस हो जाएगा। तो ये कम से कम 5-6 लेक्चर तक ये सब चलेगा। फर्स्ट सेकंड जो पॉइंट दिखाए थे मैंने सिलेबस के, वो 5-6 लेक्चर तक चलेंगे। ये देखिए 6 लेक्चर तक ये सब चलेगा थ्योरी। उसके बाद में प्रोग्राम्स आएंगे, प्रोसेस, थ्रेड, इन सब में प्रोग्राम्स होंगे। शेड्यूलिंग में न्यूमेरिकल्स होंगे, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी न्यूमेरिकल्स होंगे और इसमें भी न्यूमेरिकल्स होंगे।
तो it is a combination of theory. This course is a combination of theory, numericals and programs. Oh, sir. Yes. सर ये जो आपने कर्नल के कंपोनेंट्स बताए हैं ये सारे ऑर्डर में है क्या? ये वाला हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। स्ट्रक्चर जो है ना मॉड्यूल्स में तो हमें डिजाइन करना ही पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को ऑब्वियसली इतना बिग सॉफ्टवेयर है तो मॉड्यूल्स में तो डिजाइन करेंगे ही। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से पुट करें। अगर हम इस तरह से पुट कर रहे हैं इन दिस ऑर्डर, देन इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं कोई भी मॉड्यूल किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन कॉल कर सकता है, तो ये हम बाद में इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज सब डिस्कस करेंगे। मैंने बोला ना कि ये मैं अभी ले रहा हूँ थोड़ा सा नोट्स के सीक्वेंस में, अदरवाइज मैं बुक से अगेन डिस्कस करूंगा इसे। ये मैंने शुरू में ही बोला था ना, ये बुक से अगेन यहाँ पे है ये ओएस स्ट्रक्चर अभी, और मल्टी प्रोग्रामिंग भी एक्चुअली यहीं पे है, और बाकी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। OS structures distinguish various OS structures and types of operating system बाद में है। नोट्स के कारण मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ इसे, बाकी बुक से लूंगा नोट्स, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ OS हम पढ़ चुके हैं, और नोट्स के अकॉर्डिंग मेनली और सिलेबस के अकॉर्डिंग मेनली ये लेना है, डुअल मोड CPU ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम कॉल, इंटरप्ट एंड बूटिंग प्रोसेस। लेकिन नोट्स में मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर और थोड़ा सा मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट रख रखा है, जो कि आपको फिर ये पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये मैं दोबारा लूंगा स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ ओएस, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ले रहा हूँ नोट्स के सीक्वेंस में, ठीक है। तो मोनोलिथिक कर्नल के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, इस स्ट्रक्चर के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि इसमें एडवांटेज क्या है, अगर हम लेयर्ड कोड करें जिसमें क्या पॉइंट्स हैं कि अपर लेयर्स डिपेंड्स फॉर देयर फंक्शनलिटी ऑन लोअर लेयर्स, ओके, and as we go to the upper layer we hide the details of lower layers and provide the higher level abstraction at the upper layer. So इस तरह की कोडिंग हम करें सॉफ्टवेयर के, किसी भी सॉफ्टवेयर के, तो क्या एडवांटेज रहेगा हमें? एडवांटेज ये रहेगा कि if suppose some error comes in the software, then the debugging will be easier. Debugging will be easier, na? Because this module doesn't call the function. We can interdependently first debug this module, then we can debug this module, then this module, okay? Because this module doesn't call the functions of this module, this module doesn't call the functions of this module, okay, it calls the function of lower modules, ठीक है। डिबगिंग विल बी इजियर, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि हम किस चीज को कहाँ रखें, मतलब फिक्स है ना कि 4 ही मॉड्यूल है। अब मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट 2 बार क्यों शो किया, जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल लें, हम फाइल को एग्जीक्यूट .a.out लिखते हैं, .a.out लिखेंगे हम, तो हमारा जो a.out फाइल है वो तो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट को पता है कहाँ पे है a.out फाइल, उसके ब्लॉक नंबर्स हार्ड डिस्क पे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट मॉड्यूल को पता होंगे, ठीक है। वो a.out को मेमोरी में लोड कौन करेगा, इसका डिवाइस ड्राइवर लोड करेगा। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करेगा, उसे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूशन के लिए, जो आप देखोगे a.out के साथ कुछ चीजें अटैच्ड हो जाएंगी, ठीक है। फिर मेमोरी भी अलोकेट हो रही है उसे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स कई चीजें ऐसी होती है जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट को मेमोरी मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है, और मेमोरी मैनेजमेंट को अगेन प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल का जरूरत पड़ता है। सपोज हम किसी प्रोसेस को स्वैप आउट कर देते हैं, कुछ पेजेस, जब आप पेजिंग पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पेजेस स्वैप आउट स्वैपिंग होते रहते हैं, ठीक है। तो कौन सा कोड हम किस लेयर पे रखें, दैट इज अ बिगेस्ट इश्यू इन लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर में आपने सिस्टम अपना डिजाइन, सॉफ्टवेयर अपना डिजाइन किया, सॉरी,
सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, तो आपको कहाँ पे कौन सा चीज रखना है किस लेयर पे, दैट यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली। मोनोलिथिक कर्नल में ये इशू नहीं है। माइक्रो कर्नल का मतलब होता है कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट्स we keep in the kernel, means actually only process management and memory management. These two things we keep inside the kernel, and other things they are outside the kernel. Drivers are outside the kernel. Whole file system management module is outside the kernel. Process management, obviously process and memory. These two modules they are inside the kernel. तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि कर्नल छोटा हो जाएगा, कर्नल स्मॉल हो जाएगा तो एफिशिएंट हो जाएगा। आप कोई चेंजेस करना चाहते हो अपने खुद के डिवाइस मैनेजमेंट फाइल सिस्टम मैनेजमेंट मॉड्यूल्स यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेज तो हो गए। डिसएडवांटेज क्या होता है माइक्रो कर्नल में, ये सब नोट्स में नहीं लिखा लेकिन ये बुक में है। ये कर्नल में आपका क्या आ गया, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑन द सीपीयू, शेड्यूलिंग, पेजिंग, अगर पेजिंग यूज कर रहे हो मेमोरी मैनेजमेंट में, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड प्रोसेस आईपीसी, आईपीसी प्रोसेस मैनेजमेंट में ही होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये चार मेन चीजें होती हैं माइक्रो कर्नल में। ठीक है, इसके ऊपर एप्लीकेशंस होंगी, तो आपका फाइल सिस्टम डिवाइस ड्राइवर सब यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसमें जो डिसएडवांटेज होता है वो अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट यूनिट में इसलिए क्लियर होगा तब तक आप सिस्टम कॉल पढ़ चुके होंगे, समझ रहे हो ना। इसीलिए मैं सिर्फ छोटा सा एक डिस्कशन लिया है कि हमें इस सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में बनाना है। मॉड्यूल्स थोड़ा बहुत बता दिया, मोनोलिथिक कर्नल किसे कहते हैं, माइक्रो कर्नल किसे कहते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिटेल में बाद में देखेंगे। लेयर्ड स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और वापस देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बता दिया तो okay. So while building any software we have to look into these 2 points, functionality of each module and how modules interact with each other. Okay, so I have given the example of monolithic kernel where the interaction is free, and layered structure and microkernel also. Again I will take those things and you have to refer the test book. For layered structure these points are written. These are only the advantages you can say. Disadvantage is that is written in the book, that what is the disadvantage, that where to put a particular module on which layer. That is the main concern in case of layered structure. Okay, so अभी तक एक पेज भी नहीं हुआ है पूरा। Now above, just I have told you that above this kernel, this is kernel and all other are user processes, compiler, debugger, assembler, word, browser, और E क्या लिखा था मैंने, Excel। ठीक है, all are user processes. So they may be, you can call them a system process, application program, user program, anything, but they are not kernel process. Okay, this is the kernel code. So shell that you use is also a user process. Shell is what? What is shell? What is shell? Anybody wants to tell? Ishan, Amrit. So command line से access कर सकते हैं। हाँ बोलो बेटा विशेष। वो कमांड लाइन से एक्सेस कर सकते हो उसको, वहाँ पे आप कोड्स मैंने की रन कर सकते हैं वैसा एनवायरनमेंट। एक्सीलेंट। तो कमांड लाइन से क्या लेता है तू, क्या लेते हैं, मतलब कमांड लाइन कमांड्स डालते हैं, कमांड डालते जो डायरेक्टली जो है हम लोग फाइल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है।
नहीं नहीं, एक सेकंड देखो, ये हार्डवेयर है, ये कर्नल है, और मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर शेल है। तो शेल क्या होता है बेटा आपका? शेल मीन्स इट इज इंटरफेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। You can use the services of the operating system through shell. तो graphical user interface is also shell. Okay. Command line interface भी हो सकता है और graphical user interface भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये graphical user interface है मेरा, तो मेरे को जो भी करना है, फाइल खोलनी है, ये मैंने क्लिक किया इस PSD पे, क्लिक करती है खुल जाएगा, खोल नहीं रहा। ठीक है, तो फाइल्स रन करना है मेरे को, एक्सप्लोरर खोलना है तो प्रोसेस रन होगा। तो ये सब काम कौन कर रहा है मेरे लिए? एक्सप्लोरर प्रोसेस कौन क्रिएट कर रहा है? कर्नल। ठीक है, मेरे लिए फाइल कौन ओपन कर रहा है? कर्नल। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ? क्लिक कर करके काम कर रहा हूँ। तो दिस इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दिस इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस that is provided with the operating system, but it is not part of kernel. कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसका इंटरफेस देगा यूजर को, दैट इंटरफेस इज शेल। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएगा, आप कुछ सॉफ्टवेयर बनाओगे तो इंटरफेस दोगे नहीं यूजर को यूज करने के लिए। तो ऐसे ही ओएस विंडोज अलग चीज है और उसका ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस के बाहर है, कर्नल के बाहर है। ठीक है, ठीक है, और ये कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकती है, जैसे कि जो आपका कमांड इंटरप्रेटर होता है या यूनिक्स शेल। तो उसमें भी हम जो है, अगर सपोज पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहाँ होती थी? पहले तो अभी तो आप लिनक्स भी ओरेकल टूल बॉक्स में डाल के उबंटू यूज करते हो, है ना? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से सर्विसेज लेते हो, प्रोग्राम्स करने के अलावा प्रोग्राम्स करते हो तब शेल से लेते हो सर्विसेज, कमांड लाइन इंटरफेस से लेते हो। ठीक है, लेकिन पहले तो हम लोग सारी कमांड लाइन इंटरफेस से ही सर्विसेज लेते थे ओएस की। ठीक है ना, तो ये हम ओएस की सर्विसेज ही तो ले रहे हैं। VI यूज कर रहे हैं या पिको यूज कर रहे हैं तो एडिट कर रहे हैं फाइल को, CP यूज कर रहे हैं, नैनो यूज कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं फाइल को, CP यूज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं फाइल को, MV यूज कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं, LS कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं फाइल्स की डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स है, CD कर रहे हैं, चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं। तो ये सेम है ना, ये कमांड लाइन इंटरफेस से करो चाहे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, हम कर एक ही काम रहे हैं। क्या काम रहे हैं? हम ओएस से सर्विसेज ले रहे हैं। ओएस का मेन काम क्या है? सर्विसेज देना, करस्पॉन्डिंग टू प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल सर्विसेज देना। क्या सर्विसेज देता है प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल के करस्पॉन्डिंग आपको? यू कैन क्रिएट अ प्रोसेस, you can create a process in main memory, you can execute it, you can terminate it। जब टर्मिनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं तो ओएस आपके लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता है एक्सप्लोरर मेमोरी में और एग्जीक्यूट करता है उसे। जब आप क्लोज पे दबा देते हो, क्लोज पे क्लिक कर देते हो, तब उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। तो ओएस आपके लिए ये सब कर रहा है। आपने ये लिखा था फर्स्ट ईयर में LS5WC यस सर। लिखा था, तो ये वर्ड काउंट देता है। मतलब LS तो हो गया आपका लिस्टिंग, मतलब जैसे मैं WC-N लिख दूं तो मेरे पास कितनी फाइल्स है ना डायरेक्टरी में वो आ जाएंगी। LS का आउटपुट क्या होता है? फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन योर करंट डायरेक्टरी, ये होता है ना LS का आउटपुट। तो अब इस केस में क्या करेगा ये LS? अपना आउटपुट पाइप में डाल देगा, पाइप में डाल देगा। ये पाइप है ना बीच में, और ये WC-L जो है पाइप से रीड करेगा। तो एक्चुअली इसका आउटपुट क्या आएगा? 4, 5 जितनी भी फाइल्स डायरेक्टरीज हैं वो आउटपुट आएगा। तो ये IPC मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में IPC कराना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कराना। तो मैं जो है ये शेल के थ्रू करा रहा हूँ। IPC ये सर्विस मुझे OS प्रोवाइड करता है। फाइल्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या सर्विसेज देता है कि मैं एडिट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ फाइल, एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, जिसके लिए हमारा कमांड है RM, कॉपी कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ये कमांड्स के नाम लिखे मैंने, लिनक्स कमांड्स के।
ठीक है, एडिट करने के लिए पिको, नैनो किसी भी एडिटर में कर लो। तो ये जो है कमांड लाइन इंटरफेस से भी ले सकते हैं हम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी ले सकते हैं, एंड दैट इंटरफेस इज शेल एंड दैट इज आउटसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल में सर्विसेज देगा थ्रू शेल। प्रोसेस मैनेजमेंट, ये मॉड्यूल्स तो बना दिए हमने ओएस के अंदर, अब इनको इन्हीं मॉड्यूल्स, ओएस सर्विसेज, हाउ ओएस प्रोवाइड सर्विसेज, ये मॉड्यूल्स हमने बनाए क्यों, 4 मॉड्यूल्स हमने क्यों बनाए, यूजर कन्वीनियंस, टू सिक्योर इन्वायरमेंट बिटवीन डिफरेंट यूजर्स, इसीलिए बनाए ना, प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसीलिए चारों मॉड्यूल बनाए। तो ये प्रॉपर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स करना है, यूजर कन्वीनियंस देना है, तो यूजर को सर्विसेज देना है ना, सिक्योरिटी देना है यूजर्स को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करना है, टू एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम्स कन्वीनियंटली, टू क्रिएट फाइल्स, ये कन्वीनियंस देना है कि दे कैन क्रिएट देयर फाइल एंड ऑल दीज थिंग्स दे कैन डू विद देयर फाइल्स, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है या एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करना है, तो यूजर को सर्विसेज देना पड़ेगा, ओएस सॉफ्टवेयर को इंटरफेस देना पड़ेगा जिससे यूजर इसे यूज कर सके, एंड दैट इंटरफेस इज शेल, एंड दैट मे बी ए कमांड लाइन इंटरफेस, दैट मे बी ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फायदा ये होता है कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेनली कोई भी यूज कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मोर यूजर फ्रेंडली है ना। और कमांड लाइन इंटरफेस जो है ये इट इज लेस यूजर फ्रेंडली, कि आपको सारे कमांड्स पता होना चाहिए टू यूज द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, और सर, ये हाँ बेटा, सर लिनक्स मतलब सर लिनक्स शेल हो गया फिर? लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छा सर। और लिनक्स के साथ हर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ शेल्स प्रोवाइड करता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो लिनक्स देता ही है, इसके अलावा बैश शेल, कॉर्न शेल, सी शेल, बॉर्न शेल, ये सारी शेल है, मतलब आप किसी भी शेल को यूज कर सकते हो अपने ओएस का सर्विसेज लेने के लिए। सर्विसेज कैसे लेते हो अगर कमांड लाइन इंटरफेस से लेते हो? थ्रू कमांड्स। तो ये कमांड्स क्या हैं? दे आर सी प्रोग्राम्स। आप ये सारे सी प्रोग्राम लिखोगे, आप जितना मैंने लिखा है ना अब तक कमांड्स, इन सबके प्रोग्राम्स आप लिखोगे। सीपी का प्रोग्राम आप लिखोगे, एमवी का प्रोग्राम, एलएस का प्रोग्राम, आरएम, सीपी, कैट, सबके प्रोग्राम आप लिख सकते हो, डब्ल्यूसी। तो ये सिस्टम प्रोग्राम सब बाहर है ओएस के, ये सब कहाँ रखे हुए हैं? कहाँ रखे हैं बेटा ये सारे सिस्टम प्रोग्राम? मैं लैब क्लास में बताऊंगा, इस हफ्ते तो मैंने लैब ली नहीं ना, फर्स्ट वीक में तो लैब लिया ही नहीं, लू क्या कल से लैब? सर कल है आपकी वैसे? है तो सही, लेकिन नेक्स्ट हमें आया था कि फर्स्ट वीक में जरूरी नहीं है लैब लो, इसलिए नहीं ली। सर ऑफलाइन ही लीजिएगा सर। नहीं नहीं, ऑनलाइन तो लेनी पड़ेगी, मतलब जब तक नहीं आओगे, अगले हफ्ते तो लूंगा ही लूंगा। वो तो ऐसे ले लूंगा ना, ऐसे दिखा दिखा के तुम्हें, देखो ये ओरेकल टूल बॉक्स है ना यही, बल्कि ऑनलाइन में तो आराम है लैब लेने में, आराम से ले लूंगा, दिखाता भी रहूंगा ना कि स्लैश बिन में आपके सारे कमांड्स रखे हैं। अभी टूल बॉक्स नहीं ऑन कर रहा, मैं ओपन नहीं कर रहा, उबंटू ओपन नहीं कर रहा, मतलब स्लैश बिन में देखोगे आप सारे जितने ये कमांड्स है ना सब स्लैश बिन के अंदर है, स्लैश बिन। और ये सारी शेल भी कहाँ पे है? स्लैश बिन में। स्लैश बिन में जाओगे आप, कैसे जाओगे स्लैश बिन में? फर्स्ट ईयर याद है क्या थोड़ा बहुत? या जो लिनक्स पे काम करता रहता है, cd स्लैश बिन, cd स्पेस स्लैश बिन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ls करोगे तो आपको ये सब मिलेगा, जितने कमांड्स मैंने बोले, जितने भी कमांड्स हैं सारे कमांड्स, और ये सारी शेल भी मिलेंगी आपको, क्योंकि ये शेल भी कुछ नहीं है, सी प्रोग्राम्स है। सी प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूटेबल्स है ये ls,
CP, MV, Bourne, Bash, Corn, C-Shell सब क्या है? They are all executables of C programs. आप करते हो ना ये C प्रोग्राम, अपना फर्स्ट ईयर में करते थे ना, GCC first.c, तो एग्जीक्यूटेबल का नाम क्या बनता था? एग्जीक्यूटेबल का नाम क्या होता था? ए आउट, ए डॉट ए डॉट आउट। अगर आप उसका नाम कुछ और रखना चाहते हो ए डॉट आउट की बजाय, तो -o CP। तो जितने ही एग्जीक्यूटेबल्स हैं किस कलर में आते हैं? ग्रीन कलर में। ए डॉट आउट भी आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा, और जितने ही एग्जीक्यूटेबल्स हैं सब ग्रीन कलर में रहता है। ठीक है, तो ये जो भी एग्जीक्यूटिव, एक्चुअली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जीक्यूटिबल्स को एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई नहीं करता, रेदर एक मैजिक नंबर रहता है, फाइल के अंदर एक मैजिक नंबर रहता है लिनक्स में, उससे वो टाइप ऑफ फाइल आइडेंटिफाई करता है। टाइप ऑफ फाइल इज आइडेंटिफाइड बाय द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट बाय द एक्सटेंशन। दोनों विंडोज और लिनक्स को कुछ फाइल टाइप्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, सारे फाइल टाइप्स को सपोर्ट नहीं करते ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये इसको मतलब नहीं ये सी फाइल है, सी फाइल को first.c कौन बोल रहा है? first.c एक्सटेंशन देना जरूरी है, ओएस बोल रहा है। कंपाइलर बोल रहा है सर। एक्सीलेंट, कंपाइलर बोल रहा है। ओएस को मतलब नहीं है, ओएस नहीं आइडेंटिफाई करता कि ये सी प्रोग्राम है या वर्ड फाइल है या एक्सेल फाइल है, उसका खुद का एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करता है उसके स्ट्रक्चर को। लेकिन कुछ फाइल टाइप्स को लिनक्स और विंडोज, क्योंकि सारे फाइल टाइप्स को वो सपोर्ट करेंगे तो काफी हैवी हो जाएगा, ओएस हैवी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशंस अपना पर्टिकुलर फाइल टाइप्स आइडेंटिफाई करता है, ओएस जो है कुछ फाइल टाइप्स को आइडेंटिफाई करना ओएस को जरूरी होता है, जैसे कि वो एग्जीक्यूटेबल है या रेगुलर फाइल है या डायरेक्टरी है। रेगुलर फाइल, डायरेक्टरी, EXE और लिंक है क्या? लिंक, लिंक बनता है ना, जैसे हमारे विंडोज में सॉफ्ट लिंक बनते हैं, लिनक्स में सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक दोनों बनते हैं, ठीक है। तो इन फाइल टाइप्स को आइडेंटिफाई, जो आपका ls-l का आउटपुट होता है, उसमें फर्स्ट ls-l मीन्स लॉन्ग लिस्टिंग। ls तो सिंपली नेम दिखाता है, -l लॉन्ग लिस्टिंग दिखाता है। लॉन्ग लिस्टिंग मतलब फर्स्ट जो है टाइप ऑफ फाइल के रहता है, फर्स्ट अगर डायरेक्टरी होगी D लिखा होगा, लिंक होगा तो L लिखा होगा, ठीक है। और रेगुलर फाइल EXE के लिए स्पेस ब्लैंक ही रहेगा, लेकिन EXE को आइडेंटिफाई करता है ओएस, ठीक है। पाइप होगी, मतलब पाइप एक नेम्ड पाइप भी होती है, तो उसके लिए P रहता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ फाइल, तो कुछ फाइल टाइप्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है ओएस को। वो क्यों होता है हम लैब के डिस्कशन में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना तो है ना कि EXE को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ओएस को, क्योंकि EXE के लिए आप कंप्लीट पाथ नेम या रिलेटिव पाथ नेम नहीं देते हो कभी भी। EXE के लिए आप कभी लिखते हो क्या /bin/cp f1 f2, ये लिखते हो क्या? हमेशा cp f1 f2 लिख देते हो ना आप, /bin/cp तो नहीं लिखते ना, कंप्लीट पाथ तो ये है cp का, आप लिखते हो cp f1 f2, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल्स के लिए कंप्लीट पाथ देना जरूरी नहीं होता है। तो एग्जीक्यूटेबल्स को ओएस जो है आइडेंटिफाई करता है कि एग्जीक्यूटेबल है उसका मैजिक नंबर से, मैजिक नंबर इज देयर इन द हेडर ऑफ फाइल, मैजिक नंबर से आइडेंटिफाई करता है, एक्सटेंशन से नहीं करता। विंडोज जो है एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई करता है एग्जीक्यूटेबल्स को, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई करता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल को मैजिक नंबर से आइडेंटिफाई करता है कि वो डायरेक्टरी है या EXE है, लिंक है या रेगुलर फाइल है या पाइप है, ठीक है। तो कुछ फाइल टाइप्स को आइडेंटिफाई ये लोग करते हैं, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और मैजिक नंबर से करता है, वो एक्सटेंशन से करता है। अब जैसे कि EXE को क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट पाथ दो,
या रिलेटिव पाथ दो, रिलेटिव पाथ भी नहीं है ना सीपी, तो कंप्लीट पाथ रिलेटिव पाथ आप समझते हो? यस सर। सर टाइम हो गया सर कंप्लीट पाथ रहता है कि सी फिर कोलन हैश में पूरा ड्राइव से लेके उसका पाथ रहता है, और रिलेटिव रहता है कि उसी जो फाइल में है। हाँ उसी डायरेक्टरी में जो है। एक्सीलेंट। कंप्लीट पाथ एक्चुअली हमारा फाइल सिस्टम जो होता है लिनक्स का, उसमें ये रूट डायरेक्टरी रहता है। रूट डायरेक्टरी में कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज होती हैं, बेन हो गया। क्या बेटा? अच्छा टाइम हो गया, सॉरी। चलो ये अभी हम यहाँ पे हैं, शेल पे हैं, हम फर्स्ट पेज पे ही हैं, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट पेज से सेकंड थर्ड ये जल्दी हो जाएंगे, बाकी आगे के पेज टेंशन मत करो। और लैब में भी ये सब होगा, ये लैब का ही पोर्शन लेने लगा मैं बीच में, लैब में भी बताऊंगा ये सब। तो कल तो मेरे को नहीं लग रहा लेना अब सही है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक से ही लूंगा। क्यों? कल मैं टीम बना लूंगा दो, ठीक है सर। दो टीम बना लूंगा कल, तो फिर नेक्स्ट वीक से ही लूंगा। ठीक है, अब मैं डाउनलोड कर लूं अटेंडेंस, ये डाउनलोड हो गई। अब बाय बाय बाय। सर। थैंक यू सो अमृत नहीं आ रहा क्या? अमृत खरबंदा आ नहीं रहा पास। यस सर। आयो 52 ही बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं? सीआर सबको बोलो क्लास में आने को। चलो रॉय सर का ज्वाइन कर लो। अमितेश क्या कर रहा है बीच बीच में? सर अपने आप हो जा रहा है सर। चल बाय, रॉय सर में जाओ। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।